So my talk today is about two things which many of us face during any preparation. एक होता है खुद से हारना, एक होता है हालात से हारना. तीन चीज़ें होती हैं उसके अंदर. मतलब मुझे क्षमा कर देना, आई मिस अबाउट 100 मैसेजेस एवरी डे, सो दैट्स व्हाट it is a curse as a teacher, as a surgeon, but by the end of the day most of the things are answered or acted upon, right? So there's a prototype that our team has, but there are two problems which people talk about. One, I started attempting my exams or any grand test and my score was not doing well and I stopped giving it. Problem number one. Now since I have done some subjects and I don't have that habit of appearing for the exams, how do I really assess myself, right? So Abraham Lincoln, who's one of the greatest president of America, he said a very beautiful thing. This thing was, he said, my father was a cobbler. And I asked my dad, are you ashamed of what you do? So he told me that I'm not, because I am a cobbler by compulsion, not by choice. This is what I was supposed to do to run the family, to feed, to get food on the table. But yes, I had a choice to be the best one in the city. There I did not compromise, right? So Abraham Lincoln said, my father was a cobbler, but he could mend the shoes, which nobody else could do that in US. This is what is more important. And his statement was, he could do that because he did everything with measurements. If you want to be good at anything in life, if you don't measure, you won't be good, right? Grand test or attempting MCQs is the only way to measure your preparation. There is no other way. So if you do not attempt or you do not practice, you defy the basic fundamental of preparation, that is, you are not measuring. So मैंने एग्ज़ाम में बुरा परफॉर्म किया, वो आपकी रियलिटी थी, आपकी औकात दिखी आपको. मैंने एग्ज़ाम देना बंद कर दिया, वो आपकी बेवकूफ़ी थी. There was a bird, उसका नाम था डिड्डो. उस बर्ड की एक कहावत थी. It was a very beautiful bird and a huge bird. And anybody, any hunter who would see that bird wanted to hunt that bird, right? वो bird की एक problem थी कि वो जब भी hunter आता था अपनी आँख बंद कर लेती थी सोच के कि if I don't see the hunter will not shoot me, will not target me. आज वो bird extinct है. It doesn't exist in the world because of this habit, one habit. ये मेरे सामने मुझे मारने वाला आया, मैंने आँख बंद कर ली तो वो मुझे मारेगा नहीं. This is what happened to that bird. So if you do not attempt or you do not show up or you do not practice MCQs, you are going to get extinct. फिर वो messages आएंगे, result ही आया, but that's how it is going to be. So the process is very simple. If you want to grow, which I'm sure you all want to, you have to go through it to grow through it. There's no other way. This is very important. So मेरे स्कोर ख़राब आने दीजिए, मैं एग्ज़ाम देता रहा, ठीक है. दूसरे बच्चे से बात करना कि यार मैं अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरा रिज़ल्ट ख़राब आता है, मैं डीमोटिवेट होता हूँ, वो बोलेगा मैं भी नहीं दूंगा. वाह, दो मूर्ख होशियार नहीं होते, समझ रहे हो? One fool is dangerous, two together are destruction. समझ रहे हो आप? तो आप खुद तो डूबे, दूसरे को भी लेके डूबे. इसलिए एक रेस हो रही है, अब दोनों ने डिसाइड किया हम बैठे हैं. बढ़िया यार. ऑलराइट, सो इफ़ यू आर देयर इन द गेम, यू आर इन द गेम, योर स्किन हैज़ टू बी इन द गेम. बीच में कुछ नहीं हो सकता. तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके ऊपर ना एक हिंदी में एक बड़ी अच्छी शेर भी है, कभी गिरते तो कभी संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी संभलते रहते, बैठे रहने से तो अच्छा है हम चलते रहते, किसी और के कदमों पे चलकर हम कहीं के ना रहे,
अपनों पैरों पे चलते तो आज हम चलते रहते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ढंग से ताली बजाओ यार। पॉइंट नंबर 2, दिस इज सो कॉमन, आई डोंट नो, दिस बूट कैंप इज रियली रियली सफरिंग। इतना दुख जितना इस बूट कैंप में है किसी की दुनिया में नहीं। जितने बच्चे पैदा हुए, जितने लोग मर गए, यहीं मरे सारे। सारी बीमारियां यहीं पर हैं, सब तकलीफ यहीं पर है। इतना कहाँ से लाए बेटा? इतना दर्द तो किसी शायर के पास भी नहीं था। दरियागंज की गलियों में जहाँ मिर्ज़ा गालिब रहते थे, उन गलियों में भी इतना दुख नहीं था। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब किसी को नींद से लड़ाई है, किसी को पढ़ाई से, किसी को वो आंसर नहीं करती, ये भी दुख है। इतना दुख कैसे जोड़ रहे हो तुम? मतलब कहाँ से ला रहे हो भाई? सब बहुत पैसे वाले हैं, सब बहुत गरीब हैं। बट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बिजनेस, सपने और ज़िंदगी, इन तीनों के बारे में समझाता हूँ आपको समराइज़ करके। ना तो इनमें से कुछ पैसे की कमी से आज तक बर्बाद हुआ है, ना पैसे के होने से बना है। योर ड्रीम्स, योर बिजनेस और योर लाइफ हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मनी। स्टॉप रिलेटिंग टू मनी, राइट? डिसाइडिंग फैक्टर आपके अंदर की आग होती है। डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि आप कितनी बार अपने आप को बोल सकते हैं मैं रुकेगा नहीं, राइट? मैं झुकेगा नहीं। प्रॉब्लम यही होती है कि लोग ये सोचते ही नहीं है। हमेशा हमारे पास एक बहाना वेट कर रहा होता है जिसको पकड़ के हम आराम से बैठ सकते हैं। कमाल की बात है, हमारी बैक, हमारे बटक्स, हमारी थाई, हमारी काफ और हमारा ऑक्सीपिटल एरिया, ये सब टोटल पीछे हमारा पिछवाड़ा कितना बड़ा है। यस, हमारा जो पैर है वो नन्हे से है। ट्रू। ह्यूमन बींग्स को बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी बनाया गया है। बड़ा पोर्शन सोने का है, छोटा पोर्शन खड़े होने का है। इसीलिए रोज़ हमें लड़ना पड़ता है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, बिस्तर छोड़ने के लिए। पैर ही लड़ाई तो वहीं हो जाती है। एंड इट वेज डाउन वेरी हैवी ऑन यू, राइट? टू गेट अप अर्ली, टू शो अप, टू क्रिएट समथिंग। बट आई कैन जस्ट टेल यू इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, राइट? मैं जब 2009 I started building a unit at Max Hospital, right? And I was very I had a dream that I would be working in a corporate, naam hoga, because finally dad shifted from Gwalior with his parents to Delhi, right? And बड़ी अच्छी बात पापा बोलते थे मुझे जब मैं when I was I think 9-10 years old when they did all this. बहुत अच्छी बात बोलते थे। मैं बोलता था कि दादा दादी हमारे साथ रहते हैं, कितनी अच्छी बात है। This is my father who told me, this is what he told me, this is what he was. He said, कोई भी बच्चे इतने बड़े नहीं हो सकते कि वो अपने माँ बाप को अपने पास रखें, राइट? हम लोग दादा दादी के पास रहते हैं बेटा, वो हमारे पास नहीं रहते। This is what he told me at age 9, right? तो ये जो आपको लगता है ना बड़े बन के अपने माँ बाप को कुछ करके दिखा दोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आप ना 1% भी नहीं कर सकते उन्होंने जो आपके लिए कर दिया है। आगे का तो छोड़ देते हैं। अगर आज से लेके जब तक वो लोग जिंदा हैं आप 24 आवर्स उनके लिए करें तो भी उनका 1% आप रिटर्न नहीं कर सकते। इमेजिन कितना करना है आपको। तो आपको देखिए 2 लोग तो ऑलरेडी हैं, मतलब जिनके लिए करना है, और आप ये सोचिए कि आपकी प्रायोरिटी में तो दूसरे लोग होते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपके पहले 5 लोग हों दुनिया में जिनके बारे में आप सोचते हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड आपके पेरेंट्स होने चाहिए। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किसी और को रखिए, आप कभी नहीं हारेंगे। दिस इज़ गेटिंग योर प्रायोरिटीज़ करेक्ट, राइट? सो फिर बात आती है जो मुश्किलें हम पे बहुत हैवी हो जाती हैं, तो हम करें क्या, राइट? दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो आई स्टार्टेड वर्किंग, दिन रात बहुत मेहनत करी, बट कॉर्पोरेट कल्चर ना बेटा बहुत बेरहम होता है। उसमें चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, उसमें चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं ना। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट देयर। एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड फाइनली आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड वर्क कि मैं सिर्फ अपने क्लिनिक से काम करूँगा। आई एम गोइंग टू वर्क फ्रॉम माई क्लिनिक। दैट्स द वे मुंबई वर्क्स। So in Delhi it doesn't work like in Delhi. You are in a hospital, and from hospital you get patients and you operate. As a surgeon, you know the main thing is you wanted to operate. There's nothing else I want to do. जैसे आज सुबह कर दिया, खुश, टेंशन नहीं है ज़िंदगी में। ऐसे मैं बोलता हूँ मेरी दिहाड़ी हो गई। This is how it goes, right? So daily wage workers, right?
वन नी इन द मॉर्निंग हो जाए, एक घुटना खोलने को मिल जाए, एंड एज आई टोल्ड यू आई लव टू ऑपरेट विद बोथ द नीज, बोथ द हैंड्स, सो इट हेल्प्स मी बिकॉज आई एम एबल टू फिनिश माई सर्जरीज अराउंड 16 minutes quicker than most of the peers. That helps me because that helps me to talk here for 16 minutes. That's huge for me. It means everything to me, right? So when I moved out, right, so लोगों ने बोला कि बहुत मुश्किल होगा चीज़ें करना, but then after 10 years that we realized that we have made an impact. उस अस्पताल में भी लोग अब इतना काम नहीं करते जितना हम अपने क्लिनिक से वहाँ पे करते हैं. तो ये आपको उसके लिए फिर सिर हाथ नीचे रख के मेहनत करना. तो आपसे कोई पूछेगा इज़ द क्लाइंब ईजी, कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, मतलब इट्स नेवर ईजी, होना भी नहीं चाहिए ना. अगर आसान होगा तो मज़ा क्या है ना. तो फिर अगर आपको ये लग रहा है कि वो जो आपके आसपास की सराउंडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया इस बूट कैम्प में बहुत दुख है, तकलीफ़ों से भरा पड़ा है, कुछ उठ नहीं पाते, कुछ सो नहीं पाते, कुछ खा नहीं पाते, कुछ सब कुछ खा जाते हैं. किसी के घर में 4 शादियां हैं, वो बोलता है मैं जाऊं ना जाऊं. किसी के घर में कोई चला गया, कहता है मैं उसको आग लगाऊं ना लगाऊं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. दैट इज़ नथिंग दैट्स गोइंग टू चेंज. मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि एंट्रेंस की दुनिया या दुनिया जो पूरी आपकी लाइफ है, उसमें आपको रोज़ इन डेमन्स से लड़ना पड़ेगा. एक आपके अंदर का जो कहता है कि हंटर आया है, आग बंद कर ले, वो मारेगा नहीं. और दूसरा कि एक ऐसा हनीमून पीरियड आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पे कोई दुख ही नहीं होगा. ऐसा भी हनीमून भी ऐसा नहीं होता बेटा. तुम तो मैरिड लग रहे हो, तुम बताओ हनीमून में क्या ऐसा हो जाता है. मैरिड हो नहीं हो कोई बात नहीं, तो दुखी क्यों रहे हो, मतलब खुश होना चाहिए. यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू नो दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर. ठीक है, जश्न मनाओ बेटा इस बात का, मिठाई बांटो. आज ये सबको लड्डू खिलाएगा अपने हाथ से. नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धार्थ. गुड, राइट. इवन सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का नाम है. हिज लाइफ इज अ पॉइंट दैट यू हैव टू मूव आउट, राइट. सो आपकी लाइफ में कुछ बदलेगा नहीं. नथिंग इज गोइंग टू चेंज. हाँ जी, मैरिड नहीं, वो दिख रहा है शक्ल से, और तुम्हारी खुशी कंट्रास्टिंग दिखा रही है उसको. ही इज मैरिड, यू आर नॉट. ये फोटो डाल दो नेट पे. और यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपको पता है पहला क्वेश्चन है मैं लड़ नहीं पा रहा. दूसरा है मुसीबतों का पहाड़, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. कैन यू गेस द थर्ड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन. I was anticipating, right? I was telling Harna that Vrinda has to be away from phones, right? Because that's what's going to destroy more careers than anything else. You will be surprised to see, कल संडे था and आपका स्क्रीन टाइम कितना है. समरी आती है सारे फ़ोन्स के अंदर, राइट. 4-5 घंटे आता है और हम उसको बड़े आराम से जस्टिफाई करते हैं कि हम 4 to 5 आवर्स स्क्रीन टाइम पे हैं. But which I realize that if you go by the rules and you just check your phone 3 times a day and you give 15 minutes each to those 3 times a day, आपके सारे रिश्ते बच जाएंगे. आपकी सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मेरे भी चैनल में 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स है, फ़र्क क्या पड़ा, मैं तो देखता भी नहीं. आपका एज लॉन्ग एज काम ठीक होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आप अपने आप को इस टाइम पे इस डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रखें. आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताता हूँ मैं, बहुत सरप्राइजिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट गुड रैंक्स इन INICT एंड नीट, मोस्ट ऑफ द पीपल, they are not active on Insta or Facebook. It's a truth. It's a very, very big truth. Right? I was speaking to NEET rank 1 when he came to see me. Right? And he came to give interviews to others because I don't take interviews, I told you. Because मैं उनके साथ हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं होता. Right? So he came to see me कि उसने मुझे बोला कि सर आप इंटरव्यू में आ जाओ, रैंक 1 नीट है ना. तो मैंने कहा नहीं, वो रैंक 1 तुम नीट हो, तुम मुझे बताओ कि तुम कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करते. UCMS का लड़का था, बड़ा शांत था. तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली. उसने बोला कि सर टाइम ही नहीं होता. तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा सा ये सब कर ले तो रैंक 1 की जगह 5 आ जाता. जी सर नहीं सर 50,000 आता. 23 साल का लड़का है वो, 23 years.
राइट, एंड ही कुड एक्सप्लेन सिंप्लिसिटी कि जब आपको जो करना है ना, अगर आप उसकी तरफ 100% ध्यान नहीं देंगे वो नहीं होगा, ये सच है. सो 100% एफर्ट gives you 100% result. 99% effort gives you 0% result. एग्जाम्पल, कल का मैच था. आई वॉज सीइंग इट विद माई टीचर. मैंने उनको बोला कि सर आज आपके साथ मैच देखना है, क्रिकेट मैच देखना है, बहुत सालों बाद अब जो है आई वॉन्ट टू सी यू. सो आई वेंट टू सी हिम. सो वी वर सीइंग द मैच एंड एज यूजुअल ही नोज दैट व्हाट क्रिकेट मीन्स टू मी. सो ही आस्क्ड मी इतना बड़ा स्कोर है तो फिर क्या होने वाला है बिफोर इंडिया स्टार्टेड बैटिंग. सो आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली, either India will lose it in 30 overs or will win it in 45 overs. This match won't go to 50 overs because that's how it is supposed to be. Thankfully we won it in 45 overs, but this is what you have to understand. आप में से कितनों ने मैच नहीं देखा? ये नहीं देखने वाले. कितनों ने देखा? हाईलाइट्स देख लिया करो, वो भी बहुत है. तुम शादीशुदा होके भी ज़िंदगी जी रहे हो भाई. Anyway, so it's very very important कि हम इस बात को समझें कि दिस इज एन ऑल और नन फिनोमिना. आइदर इट इज देयर और इट्स नॉट देयर. फर्स्ट तो आपका सब्जेक्ट है फिजियो. तो ऑल और नन फिनोमिना कहता है होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. ट्रू. एक और लॉ है, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोजेक्शन? एनीबडी हु कैन टेल मी लॉ ऑफ प्रोजेक्शन? फिजियो में आता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. इफ यू स्टिमुलेट अ नर्व एनीवेयर अलोंग द पाथ, यू कांट स्टिमुलेट अ नर्व, यू कैन ओनली स्टिमुलेट रिसेप्टर, बट यू कैन स्टिमुलेट अ नर्व विच इज डैमेज्ड. सो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन सेज इफ यू स्टिमुलेट एनी नर्व, राइट, you can't stimulate a physiologically damaged nerve, you can only stimulate an anatomically damaged nerve. Law of projection says if you stimulate an anatomically damaged nerve, you can't stimulate an anatomically damaged nerve which is myelinated, it has to be demyelinated. It says that if you stimulate an anatomically damaged nerve which is demyelinated anywhere along the path, the brain will perceive that the stimulus is coming from the receptor, even if the receptor is not in the body. Phantom limb. Phantom limb is based on law of projection. True? 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 So if you achieve a level in preparation, and if you have really worked hard, done your topics once, revise them 3 times, you know what to do in last 7 days, last 24 hours, a night before, on the morning of the exam. Any catastrophic event, even if it happens, even it's a phantom limb, there will be a stimulus that will reach, and you will click and you will be topper. This is what law of projection of entrance exam means. So if you stimulate anywhere along the anatomically demyelinated damaged nerve, the brain will perceive that the stimulus is coming from the receptor. If anything happens to you towards the terminal end of your preparation velocity is such that your projection will be taking you to the top rank, and that can only happen if you are prepared with 3 things: fight your demons. The catastrophic events that are happening around you will keep on happening. You fight them out, and you start measuring everything that you do. Because if you want to be really good at something, you have to start measuring. It is very important. It's all or none phenomena. तो रैंक 1 कहता है या तो रैंक 1 आता है या रैंक 50,000 आता, बीच में नहीं आता. इसीलिए 100% is through the bridge, 99% is 0% result. This is what you have to understand. Thank you very much.